स्वागत है आप सभी का आज के एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे कि भारत के इतिहास में आखिर सबसे बेस्ट पीएम है कौन। क्या वो नेहरू है या इंदिरा या मोदी। चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। आज हम शुरुआत करेंगे नेहरू जी की एक स्पीच से, विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. At the dawn of history, India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her striving and the grandeur of her successes and her failures. Through good and ill fortune alike, she has never lost sight of that quest or forgotten the ideals which gave her strength. We end today a period of ill fortune, and India discovers herself again. The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity to the great. जवाहरलाल नेहरू, जो आज़ाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, ने देश की सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां लागू की। तो उनकी कुछ इंपॉर्टेंट नीतियां डिस्कस करें तो सबसे पहली नीति थी कि सोशलिज्म एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। Nehru advocated for a mixed economy with a dominant public sector, focusing on state-led industrialization and economic planning. आर्थिक विकास के लिए पंचवार्षिक योजनाओं का निर्माण करने के लिए 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। सेकेंड पॉइंट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू पब्लिक सेक्टर। नेहरू को राज्यों में इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में विश्वास था। So he emphasized the establishment of public sector enterprises in key sectors like steel, coal and energy to promote self-reliance and reduce dependence on imports. Third point is भूमि सुधार। नेहरू ने ग्रामीण गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए भूमि सुधार शुरू किया। ये सुधार बिचौलियों का समापन, भूमिहीनों को भूमि और पूर्ण अधिकार और किसानों को भूमि के प्रति सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखता था। शिक्षा और वैज्ञानिक ध्वज। नेहरू ने राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने मजबूत शिक्षा व्यवस्था का आधार रखा और तकनीकी शिक्षा और प्रबंधन के कला को बढ़ावा देने के लिए भारतीय तकनीकी संस्थान IITs और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIMs जैसे संगठनों की स्थापना की। Foreign policy of non-alignment. Nehru played a significant role in shaping India's foreign policy of non-alignment during the Cold War era. He advocated for maintaining equidistance from both superpower blocs, which were America and Russia, and promoting cooperation among newly independent nations. धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय। नेहरू ने भारत को धर्मनिरपेक्ष और बहादुरी बड़े समाज के रूप में देखा। उन्होंने भारतीय संविधान में स्थापित सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सहनशीलता के सिद्धांतों पर जोर दिया। If we talk about next point, it would be hydroelectric power projects. Nehru supported the construction of major hydroelectric power projects such as Bhakra Nangal Dam, which aimed to harness India's water resources for agricultural and industrial development. And we come to our last point now. Nehruvian model of development. Often referred to as the Nehruvian model, his policies focused on state-led development, mixed economy, and emphasis on heavy industries.
with the objective of achieving economic self-reliance and social equity. हालांकि नेहरू की नीतियों को भारत के विकास की नींव रखने का दर्जा दिया गया, पर उनकी सीमाओं जैसे औद्योगिकरण का धीमे गति से बढ़ना, ब्यूरोक्रेटिक असमर्थता और कृषि पर ध्यान नहीं देने के लिए नेहरू को आलोचना का सामना भी करना पड़ा। फिर भी उनका नजरिया एक दृष्टिकोण नेता और आधुनिक भारत के वास्तुकार के रूप में महत्वपूर्ण है। तलवार की नोक पर चलिए अब हम बात करते हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, और शुरुआत करते हैं एक वीडियो से। देश हमारा दबने वाला नहीं, तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। अयूब साहब कहते रहे कि हमें क्या, हम तो अपने टैंकों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सैकड़ों टैंकों के साथ और टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से टहलते हुए घूमते हुए दिल्ली में आने का उनका इरादा था, और जब ये इरादा हो तो कुछ अगर हम भी थोड़ी तरफ लाहौर की तरफ टहल कर चले गए तो मैं समझता हूँ कि मैंने या हम लोगों ने कोई गलत बात तो ऐसी नहीं की। जय हिंद। लाल बहादुर शास्त्री, the second Prime Minister of India, implemented several key policies during his tenure from 1964 to 1966. If we start, तो हमारा पहला पॉइंट होगा हरी क्रांति। शास्त्री ने भोजन की कमी को दूर करने के लिए कृषि विकास पर जोर दिया। उनकी सरकार ने हाई यील्ड सीड्स, खाद और वर्तमान खेती तकनीकों को बढ़ावा दिया, जो भारत में हरी क्रांति की बुनियाद रखने में मदद करती थी। अगर हम अगले पॉइंट की तरफ मूव करें तो दैट वुड बी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, विच इज ऑल्सो एब्रिविएटेड एट ISI. शास्त्री continued the economic policies of his predecessor Jawaharlal Nehru, focusing on industrialization through import substitution. This approach aimed to reduce dependence on imported goods by encouraging domestic production. If we talk about next point, that would be सरकारी क्षेत्र का विस्तार। शास्त्री ने देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण मांगे जैसे लोहे, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकारी क्षेत्र का विस्तार किया। यह नीति स्वप्रगति और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती थी। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रीय एकता में शास्त्री ने भारत जैसे विविध देश में एकता और समृद्धता की महत्वता को जोर दिया। उनका नारा जय जवान जय किसान उनकी राष्ट्रीय एकता और एकजुटता की दृष्टि को दिखाता था। अगर हम अगली पॉइंट की बात करें तो दैट इज फॉरेन पॉलिसी। शास्त्री परस्यूड अ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन इंटरनेशनल अफेयर्स, मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद बोथ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ब्लॉक्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। He also played a significant role in the non-aligned movement. अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो दैट इज भारत पाक संबंध। शास्त्री ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व किया। युद्ध के बावजूद उन्होंने शांति की और काम किया और 1966 में पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए, जो राजनीतिक संबंधों को पुनर्स्थापित करने और कश्मीर मुद्दे को सुलझाने का लक्ष्य रखती थी। सर्वव्यापी रूप से लाल बहादुर शास्त्री की नीतियां आर्थिक चुनौतियों को समाधान करने, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की स्वतंत्रता और सत्ता को बनाए रखने का लक्ष्य रखती थी। There are also many conspiracy theories about his death in Tashkent that we will discuss in some other video. Boring. So due to shortage of time and access of information, we are concluding the video today and will discuss about other Prime Minister in some next video. Thank you for watching till this point and keep subscribing, keep watching the video of Curiosity Unleashed. Thank you.